All right, breaking news coming in. This is a big disclosure in the Umesh Pal murder case. A CCTV footage of the Bareilly jail dated February 11th has emerged, in which accused Guddu Muslim, Asad Ahmed, Usman and Ghulam can be seen. Sources suggest that they had come to meet Ashraf Ahmed to hatch a conspiracy to kill Umesh Pal. Now, the meeting went on for over 3 hours inside of the Bareilly jail. Meanwhile, the police remand for all three accused in the Atiq Ashraf murder case is over, and they were sent to the Pratapgarh jail last night. Now, sources have told CNN News 18 have confirmed that with the police remand being over, interrogators have more reasons to doubt the presence of a missing handler behind the trio. In fact, the police is now considering requesting a polygraph test. Remember, earlier we'd gotten information about the missing link between the three shooters, which are connected to the Atiq Ashraf murder case. Remember, they were murdered on camera, and while they had a police escort, and this happened in front of the media, and the murder was caught on camera. Now, the latest development is a big development when it comes to the Umesh Pal murder case. We are going to be connecting with our EP Bureau Chief, Pranshu Mishra, to get us more details on this. Pranshu, tell us more about the CCTV footage and what it discloses. We are going to be connecting with our EP Bureau Chief. Well, these pictures right now are from Chakia, which is in fact the area where Atiq Ahmed used to operate, and this is precisely his, you can say, living quarters also, and also a sort of a office for the former mafia and also the member of parliament from Phulpul. So the searches are going on because, and see, the searches are very important because the police of late has been very under a lot of pressure for being unable to identify where Shaista Parveen, wife of late Atiq Ahmed, and also one of Atiq's closest ally, Guddu Muslim, are responding. So where are they? Their location has still not been obtained by the police. पूरा कार्यालय आपको यहाँ पर दिखा रहे हैं, जहाँ पर फिलहाल पुलिस की मौजूदगी भी है, और पुलिस की मौजूदगी का एक कारण कि यहाँ पर कुछ धब्बे नजर आ रहे हैं, लाल धब्बे हैं। ये खून के धब्बे हैं कि नहीं, ये कहना अभी जल्दबाजी होगी, लेकिन इस तरीके के लाल धब्बे हर जगह इस घर में, इस कार्यालय में नजर आ रहे हैं। और पुलिस भी यहाँ पर पहुंची है, जो देख रही है कि क्या इसका मेन सोर्स हो सकता है, कहां से ये पूरी चीजें नजर आ रही हैं। यहां आपको हम जाहिर तौर पर वो धब्बे नहीं दिखा सकते हैं, लेकिन आपको बताएं कि जिस जगह पर मेरी मौजूदगी है, ये पूरा स्टेयरकेस है, सीढ़ी के पास का ये पूरा इलाका है। इसके ठीक नीचे भी खून का, मैं धब्बे नहीं कहूंगी, खून जैसी धार, ये लाल रंग की धार यहां नजर आ रही है। आखिर ये धब्बे क्या हैं, वही शुरुआती तौर पर देखें, जो पुलिसकर्मी यहां पर पहुंचे हैं उसको देखने की कोशिश कर रहे हैं। इस कमरे में जैसे ही हम पहुंचे, हम आपको वो तस्वीर नहीं दिखा सकते, लेकिन जहां मैं खड़ी हूं, मेरे ठीक पीछे यहां पर एक इसी खून से सनी हुई धोती या साड़ी जिसे कहा जाता है, वो यहां पर मौजूद है। दूसरी तरफ अगर आप देखें तो पुलिस जो है वो लगातार कमरे दर कमरे, छत पर जाकर वो चेक कर रही है कि इसके क्या कहीं और भी सोर्सेज मिल रहे हैं। ये ब्लड जैसे स्टेन, ये खून जैसे धब्बे क्या वाकई खून के हैं या किसी और चीज के हैं, और अगर ये हैं तो ये यहां कैसे आए। यहां पर इस पूरे ऑफिस की अगर बात की जाए तो इसको बुलडोज हुए 2 साल से ज्यादा का समय हो चुका है। अब यहां कोई नहीं रहता, यहां पर केवल बात की जाए तो केवल कपड़े पड़े हैं या डॉक्यूमेंट्स पड़े हैं या फाइलें पड़ी हैं, इसके अलावा यहां पर कुछ भी नहीं है। और लेकिन यहां जैसे ही हम सुबह पहुंचे, हमें यहां पर कुछ धब्बे नजर आए, और हमने जिम्मेदार नागरिक होने के चलते पुलिस को इस बारे में इन्फॉर्म किया कि ये हमें कुछ अनयूजुअल यहां पर नजर आ रहा है, क्योंकि इससे पहले भी हम अतीक अहमद के कार्यालय आए हुए हैं और तब ऐसी चीजों पर नजर नहीं पड़ी। मैं आपको कमरे दर कमरे बता रही हूं कि इस एक कमरे में जहां पर अभी हमारी मौजूदगी है, जहां मैं खड़ी हूं, उसके जमीन पर धब्बे ही धब्बे हैं, वो लाल धब्बे इस पूरे जो पूरी जमीन है वहां पर नजर आ रही हैं। इसके अलावा इस कमरे के बाद जब आप इस कमरे में जाते हैं तो यहां पर तो जैसे मैंने आपको बताया कि मेरे ठीक पीछे एक कपड़ा पड़ा हुआ है जो खून में सना हुआ है। नीचे की तरफ यहां पर कुछ पन्ने हैं जिनमें ब्लड स्टेन नजर आ रहा है। जहां मैं खड़ी हूं यहां पर खून के कुछ धब्बे हैं, और यहां से जब हम इस तरफ को बढ़ते हैं, इस कमरे की अगर बात करें तो इस कमरे में नहीं, इस कमरे में ऐसा कुछ भी नजर नहीं आ रहा। ये एक जो बड़ा कमरा, यहां कुछ इस तरीके का नजर नहीं आ रहा। यहां से अंदर चल के जब हम देखते हैं तो यहां फिर मुझे कुछ धब्बे दिख रहे हैं जो पोछे हुए हैं। अब हम जाहिर तौर पर आपको
वो तस्वीरें नहीं दिखा सकते हैं जो ब्लड स्टेन जैसी लग रही हैं, जो खून के धब्बों जैसी लग रही है। लेकिन इस बड़े हॉल में भी, जो यहाँ का सबसे बड़ा हॉल है, वहां पर भी ये ब्लड स्टेन्स जो है वो नजर आ रहे हैं। यहाँ से वो ब्लड स्टेन्स नजर आ रहे हैं। नीचे चल के आपको बताते हैं कि यहाँ तो अभी हम इसके फर्स्ट फ्लोर पर हैं और यहाँ अगर बात की जाए तो एक के बाद एक पुलिस कर्मियों का आना, क्योंकि ये मैटर थोड़ा संगीन गंभीर हो सकता है जिस तरीके से अभी यहाँ पर हालात बने हुए हैं। देखें, मैं तस्वीरें नहीं दिखा सकती लेकिन डिस्क्राइब कर सकती हूँ कि ये जो आपको सफ़ेद स्टेयरकेस नज़र आ रही है, नीचे की तरफ जाते हुए इनमें भी धारा जो कहते हैं ना बहती है, जैसे पानी ऊपर से बहता है, वैसे बहते हुए लाल निशान है। इसके बाद मैं नीचे की तरफ आपको लेकर चलती हूँ जहाँ से इसकी असल में शुरुआत, जब हम यहाँ घुसे तो हमने देखा कि कहाँ से ये क्या है। अब ये पूरी स्टेयरकेस जैसे मैं फॉलो कर रही हूँ तो यहाँ आप देखेंगे कि स्टेयरकेस के, मैं वो तस्वीर आपको नहीं दिखा पाऊंगी, लेकिन इस स्टेयरकेस के पूरे जो आसपास का इलाका है वहाँ पर भी उसी तरीके के ब्लड स्टेन नजर आ रहे हैं। जब हम पहली बार यहाँ पर आए तो हमें लगा ये धब्बे हो सकते हैं कि पेंट के हो सकता है कि किसी ने पान खा के थूका हो, ऐसी तमाम चीज़ें। लेकिन जैसे जैसे हम आगे बढ़ते गए ये डॉट जो हैं ये बहुत ज़्यादा होते गए और ये इस तरीके से होते गए कि जैसे इतना ब्लड की ये पहले हमें लगा किसी का हाथ गलती से कट गया हो, कोई यहाँ पर आया हो, उसका ब्लड स्टेन। लेकिन जिन सीढ़ियों में मैं चल रही हूँ, इन तमाम सीढ़ियों में किनारे में ऐसे में यहाँ पर लाल धब्बे जो हैं वो बने हुए हैं। मौके पर यहाँ फिलहाल 3 पुलिसकर्मी हैं और लगातार उनकी संख्या भी बढ़ती जा रही है, जिनको हमने यहाँ पर बताया कि ये इस तरीके के कुछ धब्बे नज़र आ रहे हैं। देखिए, हम बिल्कुल नहीं कह रहे हैं कि ये खून के धब्बे हैं, हम ये कह रहे हैं ये खून जैसे दिख रहे हैं, लाल रंग के धब्बे हैं। ये धब्बे क्या है वो जाहिर तौर पर पुलिस ही इसको बताएगी कि क्या है, लेकिन कुछ अनयूजुअल ज़रूर है जो आज हमें अतीक अहमद के कार्यालय में दिखा। जब यहाँ पर हम आए थे देखने के लिए, डॉक्यूमेंट के लिए, ये पूरा कार्यालय अगर मैं आपको दिखाऊँ तस्वीरों में तो आप देखेंगे कि बाहर भी पुलिस की तैनाती जो है वो दिख रही है। देखें आप, बाहर भी आपको पुलिस वाले जो है वो नज़र आ रहे हैं और यहाँ आप देखें तो पुलिस की टीम आपको नज़र आ रही है और एक के बाद एक पुलिसकर्मी जो है वो लगातार बढ़ते जा रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर अब मामला जो है वो अब गंभीर होता जा रहा है। क्योंकि ये जो ब्लड स्टेन्स नज़र आ रहे हैं ये जाहिर तौर पर कुछ गंभीर भी हो सकता है। और यहाँ आपको तस्वीरें लगातार दिखा रही हैं कि किस तरीके से यहाँ पर ये खून जैसे धब्बे देखने को मिल रहे हैं। तो ये देखें आप, यहाँ पर आपको पूरी तस्वीर दिखा रहे हैं। पुलिस बाहर से भी आने लगी है, अंदर तो लगातार यहाँ पर टीमें मौजूद ही है और लगातार ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरीके से अजीब सी चीज़, एक अनयूजुअल चीज़ हमें नज़र आई जो हमने यहाँ पर देखी, जहाँ पर सीधे तौर पर हमें खून जैसे धब्बे नज़र आए। अंदर घुसते ही हमने कुछ नया देखा, कुछ अजीब देखा। पहले 2-3 बार हमने सोचा कि नहीं ये नहीं होगा, जो हम सोच रहे हैं ये नहीं होगा, क्योंकि ये तो कार्यालय बंद रहता है और ये कार्यालय अगर बंद रहता है तो यहाँ पर कोई क्यों आएगा। यहाँ पर केवल मीडिया के लोग आ रहे हैं जो यहाँ पर इन फाइलों को देखने आ रहे हैं, यहाँ क्या कुछ है वो देखने के लिए आ रहे हैं। इसके अलावा ये ऐसा वाकया, बंद दफ्तर जिसको ढा दिया गया है, जो मलबे में बदल चुका है, वहां पे अब मैं ये छींटे आपको दिखाती हूँ कि कहां तक है। ये पूरा टूटा हुआ कार्यालय और यहाँ ये इधर एक और संदिग्ध, एक ब्लैक कलर का जैकेट, यहाँ पे ये जैकेट दिख रहा है। ये जैकेट ब्लैक कलर का, जो कि हम लोग यहाँ रोज रिपोर्टिंग के लिए आते हैं इस जगह पे, क्योंकि ये अतीक का फाइल है। यहाँ पे जैकेट नहीं था, ये जैकेट कब आया, कैसे आया, ये भी संदेहास्पद है। ये छींटे जो हैं, जो खून जैसे दिख रहे हैं, ये खून है या नहीं, ये पुलिस को तय करना है। ये यहाँ तक आए हुए हैं और ये इस कमरे तक भी गए हुए हैं। अब ये सब कुछ, मतलब नीचे से लेकर पहली मंजिल तक पूरा इस एरिया में क्या हुआ है, किस तरीके से ये घटना है, ये क्या है, कुछ भी सच्चाई अभी पता नहीं है ये सब कुछ। लेकिन पुलिस के कम से कम 5 अधिकारी यहाँ पहुंचकर जांच पड़ताल कर चुके हैं और ये हमने अपनी जिम्मेदारी समझते हुए जब हम यहाँ पहुंचे और हमें इस तरीके की